Thank you, sir. Good Yeah. afternoon, sir. Good afternoon. Yeah, very good. So, Sudarshan, introduce yourself. Sir, my name is Nayarkar Sudarshan Narayan. I am from Bid district, Maharashtra. I completed my graduation from BA Sociology, Hmm. and I am my hobbies are traveling, planting trees, and playing cricket. And thank you for uh, giving interview in this board Okay. in front Thank of you. the. You are welcome. You are most welcome. And Maharashtra Yes, sir. uh, has the largest, one of the largest coastal uh, it has. Right? What are the coastal security threats or challenges? uh, most important security threats in recent time is piracy in the Eastern African region, Hmm. where now recently the wars between Iran versus Israel or America is happening, and America is happening. So the passage of shipping is in a dangerous situation. Hmm. First, this second is uh, like a coming of terrorism from the sea route, like in the 1611 attack in Mumbai. These are the this is second major reason. Third is to maintain or secure sea line of communication is also one of the major reason in a maritime sector. Okay. There are some fishing issues also. Yes, sir. Illegal, unregulated, unreported. What in somewhere I read as IEU fishing. Hmm? So what is the issues with relating to this unregulated illicit fishing? Uh, sir, just 1 minute, sir. I can switch off the AC. Yeah, yeah. Just Yes, please. sorry, sir. It's too No loud. problem. So that, Yeah, are you comfortable now? yes, sir. Okay. Yeah. So please go ahead. So about fishing, Sir, I'm asking. sir, can you repeat us question one time? No, I was asking you, I read somewhere illegal, unreported, and Yes, sir. unregulated fishing becomes a Yes, sir. major threat. Uh, in recent time, it is becoming a major threat also because it's a major point for smuggling of the drugs as well as arms from the neighboring countries, as well drugs from the Golden Crescent or Golden Triangle is a major threat for occur during unregulated fishing happens, sir. Okay. Who is regulating, who is taking care of the coast in a Uh, state taken as a India itself, right? As a whole for the country? Who is responsible for internal security with regard to coast is concerned? Uh, Sir, regarding the coast, Indian Coast Guard under Ministry of Defense is the regulatory or securing the coast of India. Okay. Beyond that, there are other agencies, Uh, uh, Other agencies, sir, I don't the remember. state police to help Hi, you. yes, sir. Also, the customs also helping them, as well as the state police, customs, as well as intelligence agency. They also provide No, they are information. all providing support roles, right? Yes, sir. Where where they do the security aspect. huh? Yes, sir. It's a coast guard, but at the at the coast level, we have at the beaches, we have our policemen, right? Okay, sir. Yeah. What is the role of police in the coastal areas? uh, uh, the direct police are the coast guard is directly securing the coast, but Yes. police are helping them in providing assistance, like providing force to them, in giving information about the sources they have. These are the some of the helps that provided by police to the coast guard in securing Very, coast. very good. You like traveling. Right. Everybody likes it, but there is a difference of how they look at traveling. The experiences are different. Yes, sir. Why do you like to travel, and what are the kind of experiences you had? I'm sir. I'm from small village. There is no that kind of extracurricular activity. There we are in a school time. There are we, in Marathi we call as like in a school we picnic in a village or Hmm. other than. Then we grow up. Then we start with the friends. We go outside the places, and that generate interest in me about traveling. So then I will travel. I was adventuring various places, hills, and we are from the Balaghat region. So there are hills and stuff. So it's make me so grateful, and it's to travel there.
Very good. as well. What do you actually learn by traveling? uh, uh, it's give me traveling from various region is give the culture aspect of the people around the Maharashtra. I mostly travel in Maharashtra, like various tribes are there. We travel in jungles as well as Western Ghats, so we know about various culture about the region of that region, as well as some like the habit, the food of them. These are some of the activities. Very good. And your hobby of planting trees. It's a very good hobby, but planting tree itself is inadequate. Yes, sir. Do you agree with me? Yes, sir. It's important to grow after planting. It need to be to. मतलब, can I speak in Hindi, sir, little bit? Yeah, if you want to give in Hindi, you can do it, no problem. I can Yes. understand. I'll ask questions in English. ओके सर, थैंक यू सर। एक अच्छा लगता है उसको, सर्वाइवल करना भी प्लांट्स को एक जरूरी है, जस्ट Hmm. प्लांटिंग ही नहीं करना। हम लोगों ने स्टूडेंट ने ग्रुप्स बनाया था, बचपन से ही आदत है, टीचर्स ने आदत डाली थी कि स्कूल के अराउंड प्लांटिंग करें, तो फिर बाद स्कूल छूटने के बाद प्लांटिंग करना तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसको ग्रो करो। तो हमने अराउंड 500 ट्रीज प्लांट किए, तो Hmm. अराउंड 454 45 कुछ अराउंड सर्वाइव किए। तो Hmm. ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस ट्रीट को सर्वाइव करें आखिर तक, तो मोस्ट मैटर करता है सर। What kind of feeling when we see a plant that we have planted is growing up? सॉरी सर। What kind of a feeling you get when you see the It's plant great growing? pleasure that various plants are there. Hmm. We feel very happy and much composure while planting trees. That's why it can generate a hobby in me. Why your choice, Indo-Tibet Border Force? I like from the childhood I am adventurous or traveling person. I like defense forces from the childhood. Yeah. To so Yeah. Do you know the challenges of working in ITBB? there are challenges, but these are if you What take what are the challenges? You uh, you can you can tell me in Hindi, right? No problem. I can understand. अ, एक तो होता है हाई अल्टीट्यूड होता है, जहाँ Hmm. इन्वायरमेंट हार्श इन्वायरमेंट होता है, तो Hmm. वो एक चैलेंज है आईटीबीपी के लिए, स्पेशली हाई अल्टीट्यूड और हार्श इन्वायरमेंट। दूसरा, आप जो लोग वहाँ पे है, वहाँ का कल्चर है, उसको एक ऑफिसर आप उसको अडॉप्ट करना जरूरी है, ताकि Hmm. उन लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं। जैसे आर्मी आर्मी ने एक ऑपरेशन सद्भावना इनिशिएटिव किया था कि आप उनके Hmm. साथ जो बॉर्डर एरियाज के, तो एक वो भी चैलेंज है आप ऑफिसर की कि उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर एक आईटीबीपी ऑफिसर जो बॉर्डर पूरी तरह फेंस नहीं है चाइना के साथ, जैसे Hmm. लद्दाख में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी, तो आपको वहाँ पेट्रोलिंग करना हमेशा जरूर, एक मेजर चैलेंज होता है कि पेट्रोलिंग पे आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है, ताकि इलीगल माइग्रेंट ना आ सके इंडिया में। तो दीज आर But द do सब। you, yeah, do you think India made a mistake by giving asylum to Dalai Lama? That was an escalation point of यस सर। what do you call enmity or relationship got spoiled. Uh, Sir, I don't think that giving asylum to Dalai Lama is wrong to doing at that time. India non-consensual activity also happened between India and China in 1945 or 44 something. Hmm. उसमें कुछ ये पॉइंट्स लिखे थे कि इंटर मैटर में नहीं मैटर करेगा। इंडिया ने जब वो दलाई लामा आया इंडिया में, तो वो पार्ट ऑफ इंडिया था, तो वो भी इशू था कि तिब्बत बोलता था कि हमारा पार्ट है, तो वो ऐसे असालम देना गलत है, लेकिन इंडिया में बोला ये आ सकते हैं, तो इसी वजह से मैं नहीं मान सकता कि गलत बात की थी तब। Okay, I will explain that later. Okay, thank you. Over to you, sir. थैंक यू सर। Thank you. यस सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो आप विदर्भा से हैं? नहीं सर, महाराष्ट्र मराठवाड़ा से। कौन सा जिला है? बीड डिस्ट्रिक्ट सर। ओके, बीड। ओके, तो मराठवाड़ा से हैं। यस सर। तो बीड के बारे में कुछ बताइए, कैसे समस्याएं क्या हैं और कैसा जिला है? बीड एक मराठवाड़ा में है, जो सेंटर महाराष्ट्र में आता है, और जो एक वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड में आता है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है। वो मराठवाड़ा रीजन ही कहा जाता है कि ड्रॉट प्रोन रीजन है ये महाराष्ट्र का। तो मेजर समस्या है तो वही है कि वहाँ बारिश कम होती है,
तो एग्रीकल्चर वो होता है जो ड्राई फार्मिंग जैसे हो सकती है, क्योंकि बारिश 70 से 80 सेंटीमीटर तक ही होती है। तो मेजर रीजन है कि वहाँ वाटर की कमी है। दूसरा इशू है वाटर कमी होने के कारण फार्मर सुसाइड सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बीड डिस्ट्रिक्ट होता है। और हम्म। तो वो एक मेजर इशू है। तीसरा है एज कंपेयर टू दूसरे रीजन जो मराठवाड़ा में है, जैसे जो अभी संभाजी नगर नाम से हुआ है, वो जालना लातूर, अभी एक कोई हाईवे सर अभी याद नहीं आ रहा कौन सा हाईवे, लेकिन हाईवे जाने के कारण कोई हाईवे जाने के कारण वो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बीड से दूर है इसलिए वहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इसी की वजह से माइग्रेट करना पड़ता है वेस्टर्न महाराष्ट्र एज अ शुगर केन वर्कर, जो लेबर होते हैं उनका एक ये भी मेजर इशू है वहाँ पे सर। तो समृद्धि हाईवे की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ सर, समृद्धि हाईवे, हाँ। तो बीड से कितना दूर है वो? कुछ 100-150 किलोमीटर के आसपास, 100 के आसपास किलोमीटर दूर है। सो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से जाता है सर। औरंगाबाद से जाता है, ओके। जो अभी संभाजी नगर नाम हुआ है सर। तो ये फार्मर सुसाइड के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? अ, अभी तो फार्मर सुसाइड के वो मेजर इशू है, लेकिन अभी गवर्नमेंट एक्टिवली काम कर रही है, जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट कर रही है, और लोन भी है, जो लोन दिए जाते हैं बैंक से तो उसको लोन को वेव कर रही है। तो वो भी एक बात है कि जो इनिशिएटिव जैसे जलयुक्त शिवार, जहाँ पे पॉन्ड्स लेक से जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, एक वो भी मेजर इनिशिएटिव लिया जा रहा है। फिर स्पेशल इरिगेशन फंड भी प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू कि इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप की जाए। और एक और है कि वहाँ पे वाटर प्रोवाइड के लिए जो गंगा सॉरी सॉरी सर गोदावरी रिवर से बिंदुसरा रिवर को कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि गोदावरी का जो ज्यादा पानी है वो बिंदुसरा जो बीड की रिवर है उसमें लाया जा सके, ताकि जो वाटर की कमी है वो पूरी हो सके। ओके, तो आपने सोशियोलॉजी और मराठी पढ़ी है, हाँ सर। तो मराठी लिटरेचर के बारे में बताइए। मराठी लिटरेचर तो काफी समृद्ध है। हाँ सर, वो मराठी जस्ट सब्जेक्ट था, उसमें सोशियोलॉजी मेन सब्जेक्ट था, तो सर ओके सॉरी इसके बारे में नहीं जानता। ओके ओके, सोशियोलॉजी में आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में जो सोशल जस्टिस मूवमेंट था वो बहुत स्ट्रांग था। सोशल, सोशल जस्टिस मूवमेंट, सामाजिक न्याय। ओके सर, नहीं जानता सर उस मूवमेंट के बारे में। महात्मा फूले, डॉक्टर अम्बेडकर, हाँ हाँ इनके सर। बारे में हाँ जानकारी नहीं सॉरी। है? हाँ वो हाँ सर, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, फिर आगरकर जी, दे आर द मोस्ट सोशल सुधारक जिसने वुमेन्स को इक्वेलिटी के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए फाइट किया। तो और जो जो लोअर कास्ट हिरार्की में लोअर आते हैं उनको राइट अपना रिप्रेजेंट करने, जो महात्मा फुले जी थे, उन्होंने जो जो पिछड़ी जाति है ना उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किया। जैसे जैसे छत्रपति शाहू महाराज जी ने भी बहुत सारे काम किए, जैसे उनके लिए जो पिछड़े जाति के लिए स्कूल बनाने हो, हॉस्टल्स बनाने हो, या रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब फिर जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद को इन्हीं को डॉक्टर शाहू महाराज जी ने कुछ फंड्स दिए थे कि वो आगे जाके फॉरेन में वो पढ़ सके। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो काम किया है सोसाइटी के लिए। ओके, ये भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था 1818 में, ओके सर। इसका क्या महत्व है? सर डॉक्टर अल्लाह भाई होळकर के इससे रिलेटेड है कुछ, तो एग्जैक्ट नहीं पता, सॉरी सर, नहीं, पढ़ लूंगा भीमा सर इसके। भीमा कोरेगांव तो पूना के पास है ना? हाँ सर। तो उसमें जो युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को, उसके बारे में नहीं पता है? नहीं सर, अब पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा सर। ओके, औरंगाबाद जिले में, अब संभाजी नगर हो गया है, हाँ। वहाँ फेमस बुद्धिस्ट केव्स, ओके। वो कहाँ पर है? और अराउंड एलोरा और अजंता, ये दो बुद्धिस्ट केव है वहाँ से, और मेरे डिस्ट्रिक्ट से अराउंड 130 किलोमीटर अवे है। और महाराष्ट्र में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? महाराष्ट्र में 4 ज्योतिर्लिंग, हाँ 4 है सर, 4 या 3 ऐसे कुछ है, स्पेसिफिक नंबर याद नहीं, लेकिन 4 या 3 है कुछ ऐसे। कहाँ कहाँ पर है? एक परली वैजनाथ है, एक त्र्यंबकेश्वर है, और एक घृष्णेश्वर है,
और एक याद नहीं है सर। ओके, भीमा, हाँ, भीमा भीमा शंकर। शंकर। भीमा शंकर एक सर। तो 5 है ना फिर तो, 5 भी 6 होंगे, त्र्यंबकेश्वर में भी तो है। त्र्यंबकेश्वर एक, भीमा शंकर दो, कृष्णेश्वर तीन, परली वैजनाथ चार। और औंधा नागनाथ। हाँ, एक ये भी हो सकता है, ये इसके बारे में नहीं पता सर, सॉरी। ओके, अगर आपको आईटीबीपी में काम करने का मौका मिले, जो कि आपकी पहली चॉइस है, ठीक है, तो आप उसकी कार्यशैली में क्या सुधार लाओगे? आईटीबी, तो एक तो सर, जो ऑफिसर और इनके बीच में जो जवान है, उनके बीच में जो कनेक्ट कोऑर्डिनेशन होगा, उसके लिए मैं ट्राई करूंगा कि मेरे जो यूनिट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो, एक कंसेशन बेस्ड डिसीजन हो हमें हर चीज़ में। एक वो होगा। आईटीबीपी स्पेशली बॉर्डर एरिया काम करती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ट्राई करूंगा कि जो पोरस से रीजन है वहाँ पे, मतलब बाउंड्रीज है, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कम हो, इसके लिए भी काम करूंगा। और वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है उनके साथ मिलके अच्छे से काम करना चाहूँगा। ओके, महाराष्ट्र कोस्टल स्टेट भी है, यस सर, हाँ। सागरी स्टेट। कहाँ पर है, किस एरिया में कोस्टल एरिया है? वो कौन सा एरिया महाराष्ट्र का है, या वे, जिले कौन से हैं? वेस्टर्न महाराष्ट्र है सर। जिले हो, एक है पालघर जिला है, फिर मुंबई शहर, मुंबई उपनगर है, फिर रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये 6 जिले हैं सर। ये 6 में है। तो कितना लंबा है कोस्टल बेल्ट, मालूम है कुछ? सर अभी के डाटा नया कोस्ट के हिसाब से नहीं पता है, लेकिन पुरानी को जो रिपोर्ट आया था, कोस्टल रिपोर्ट था, तो उस हिसाब से 720 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है। लेकिन अभी जो नया रिपोर्ट आया था 2023 या 24 में, उस हिसाब से बढ़ा हुआ है, लेकिन वो अभी डाटा नहीं पता। तो कोस्टल एरिया कैसे बढ़ सकता है? पहले एक लाइन ड्रॉ, मतलब एक नॉर्मल राइट ड्रॉ की जाती थी, जिसमें जो अंदर बाहर जो एरिया है वैसे नहीं मापा जाता था, लेकिन अब उस हिसाब से अभी वो मापा जा रहा है, तो इसी ओके, के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सुदर्शन।